Good morning everyone. I hope you have enjoyed the last lecture. So student, today we will discuss about some basic conditional programs which will be based on characters. Okay. In previous lecture I had given some assignments to you. So I hope all of you have gone through this, all of you have completed. If you have not completed, you can message me, I will tell you. Fine. So today I will tell you 2 or 3 programs, and those programs is based on the characters. Fine. Now how you can use the basic characters, how can use the characters data type, I am talking about the character data types in your conditional programs. Okay. So it would be more interesting for you. Fine. Then get ready to learn about how you will use any characters in your programs. Student, suppose to be if you have to write any program in Blue Java, and that program is about to read any character and check the given character is vowel or not. Just please pay attention. I am telling you about you have to read any character and you have to check that character is vowel or not. Then how you will use it. Okay. So let's see. I hope you will enjoy these programs. Fine. So first program we have in Blue Java here. Write program to read any character. To read any character and check the character is and check the given character is vowel or not. Character is vowel or not. Student, as we know that we have some vowels like A, E, I, O, U. So how will you check your particular character, whatever character you are going to be enter at run time in the program, that character relates to the vowel or not? I told you we have A, E, I, O, U. All are the vowels, and excepting A, E, I, O, U, we have consonants. So how we will design this program? Pay attention. First we will write class. What we will write? Class. Suppose to be I have given the name of the class, that is your vowel. That should be meaningful for what purpose you are going to design your program. So I have given the name of the class is your vowel. Now we place void main, and here we will read the character. Suppose to be I have taken one variable ch. Ch is your variable name, and the name of this variable is the data type of this variable is your character. It's your character. So student, here I will tell you one more thing. Don't be confused about the public static void main string args. Okay. In some programs I told you can mention public static void main, after that these points, or public void main. Okay. I will tell you some details, or I will explain all these things in details later. Fine. So here I am telling you void main char ch. It means ch is your variable name, which data type is your char. Now here we'll check. What we have to check? If ch means this is your variable name, okay, equal to, here we will place double equal to, because we have to check whatever character we are going to enter in ch, that character is equivalent to A or not, that character is equivalent to E or not, that character is equivalent to I or not, that character is equivalent to O, U or not. Fine. So here we will check if ch equal to small a. Student, why I have given small a? Or ch equal to capital A. Pay attention everyone, don't be confused. I have written if ch equal to small a or ch equal to capital A.
Pay attention, after that each and everything will be clear. Because the value of small a and the value of capital A will be different in ASCII format. We have one code that is called ASCII code. ASCII code means ASCII. I am talking about this code. This is called American Standard Code for Information Interchange. So once we talk about the ASCII character, ASCII value, each and every character means I am talking about the small a to z and I am talking about the capital A to z. So whatever the value will come in ASCII, the value will be different. If I compare small a, then small a will start from 97. Likewise, if I talk about the small b, it will start 98. Consistently it will increase. Fine? But if I talk about the capital A, then the value of capital A will come 65. If I talk about the capital B, the value will come 66. So this is called ASCII value, and the ASCII value will differ with small a and capital A. So that's why I am saying you have to use both characters. Both characters means small a and capital A. The value should not be differ. If you are entering small a, then it will match with small a and match with capital A. So I have written if CH equal to small a or CH equal to capital A. Because of यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझ लो. क्योंकि जब आप कैरेक्टर एंटर करते हो तो उस समय ये डिसाइड नहीं करते हो कि आप कैपिटल एंटर कर रहे हो कि स्मॉल एंटर कर रहे हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वंस यू आर एंटरिंग एनी कैरेक्टर, तो आप उस समय ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आप क्या कर रहे हो. अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो अपने प्रोग्राम्स को लेके, तो उस केस में क्या होता है, आपने स्मॉल ए दे दिया या कैरेक्टर ए दे दिया. लेकिन अगर हम दोनों कैरेक्टर देते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल, तो प्रोग्राम को दोनों सपोर्ट करके बताना चाहिए कि वो कैरेक्टर वोवेल है कि नहीं. तो सपोज कर अगर हमने स्मॉल ए दे दिया तो स्मॉल ए भी हमारा वोवेल होगा और कैपिटल ए दे दिया तो भी हमारा वोवेल होगा. लेकिन जब हम प्रोग्राम डेवलप करेंगे तो उस केस में हमें ये चीज डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि हमारी वैल्यू अगर डिफर भी करती है तो भी ये इसको एक्सेप्ट करे. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस अरेंजमेंट्स. इफ CH इक्वल टू स्मॉल ए, या तो अगर हम कैरेक्टर जो एंटर कर रहे हैं वो स्मॉल ए है, या अगर वो CH जो है मतलब उस वेरिएबल में जो वैल्यू आ रही है वो कैपिटल ए के इक्विवेलेंट हो रहा है, तो उस केस में भी, दोनों के केस में वो चेक कर ले कि वो वोवेल है कि नहीं है. और CH इक्वल टू स्मॉल e, और स्पेस नहीं है इसलिए मैं एक इधर से लिखना शुरू कर रहा हूं. CH इक्वल टू कैपिटल E और CH इक्वल टू कैपिटल स्मॉल o और CH इक्वल टू कैपिटल O और CH इक्वल टू स्मॉल u. आपको सारे अल्फाबेट चेक कर लेना इसी तरीके से, एक का आप लिखोगे बाकी सब कुछ एडिटिंग हो जाएगा. और CH इक्वल टू कैपिटल U. Are you getting my point? What I did over here, I have given one variable name. The name of this variable is your CH, and the data type of this variable is your character type. इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हो रहा है? कैरेक्टर हो रहा है. अब सपोज करो कि हमने दे दिया इस कैरेक्टर्स में स्मॉल e. क्या दे दिया? स्मॉल e. तो अभी मैं बता रहा हूं इसको एक्सप्लेन करके. तो स्मॉल e जो होगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा? CH में हो जाएगा. किसमें स्टोर हो जाएगा? CH में. तो अब चेक करेगा इफ CH इक्वल टू, तो CH में है क्या? स्मॉल e. तो CH इक्वल टू क्या इस कैरेक्टर के इक्विवेलेंट है? क्या वो CH में जो वैल्यू आई है वो इसके बराबर है, या CH में जो आई है वैल्यू वो इसके बराबर है, या CH में जो वैल्यू आई है वो इसके बराबर है, या CH में जो वैल्यू आई है वो O के इक्विवेलेंट है, या CH में जो वैल्यू है वो कैपिटल O के इक्विवेलेंट है, या CH में जो वैल्यू है वो स्मॉल u, या CH में जो वैल्यू है वो कैपिटल U के इक्विवेलेंट है. अगर CH की जो वैल्यू है इसमें से किसी एक में से मैच कर गया तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वोवेल हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो AIEOU में से आ रही है. तो ऑब्वियसली जब E दोगे तो E क्या होगा हमारा? वोवेल हो जाएगा. यहाँ पर प्रिंट कर दोगे system.out.println
you will have to write this one and you will mention the character is vowel. Character is vowel, and if you want to print that character also, you may give like this plus ch. else अगर मान लो हमने ch में t दे दिया, स्मॉल t या कैपिटल टी, कोई एक दे दिया इन दोनों में से, तो t किस में स्टोर हो गया? ch में ना। t किस में स्टोर हो गया? ch में स्टोर हो गया, या p दे दिया आपने। फाइन। तो इन दोनों कैरेक्टर में से कोई भी दे दिया, कोई भी कैरेक्टर जो अल्फाबेट ये आपके वॉवेल्स को छोड़ के हैं, ठीक है। तो अगर हमने t दे दिया तो t किस में स्टोर हो जाएगा? ch में स्टोर हो जाएगा। अब ch में कंपेयर करेगा, जो वैल्यू आई है, मान लो हमने t स्टोर किया है, तो t क्या इसके बराबर है? t इससे मैच करता है? नहीं। क्या t इससे मैच करता है? नहीं। t इससे मैच करता है? नो। t इससे मैच करता है? नो। तो इसमें से किसी से भी मैच नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली जब t है तो वो वॉवेल होगा ही नहीं, और वॉवेल के जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो सब हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। तो जब t वॉवेल नहीं होगा तो क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। इन दैट केस यू विल हैव टू गिव एल्स पार्ट, एंड इन एल्स पार्ट यू विल मेंशन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln द कैरेक्टर इज consonant. Character is consonant, and you can give ch also, because if you want to print that character like this, it's very easy student. आपको क्या करना है? You have to define the class and class name. I have given the class name vowel. What I have given? Vowel. Void में char ch. It means I have taken one variable name. The name of this variable is your ch, and the data type of this variable is your char type. It means it will accept character. It will accept character. अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन चेक किया है, क्या है? If ch equal to small a और ch equal to capital A, जो वैल्यू आई है ch में, वो अगर स्मॉल ए के बराबर है या कैपिटल ए है, या वो स्मॉल ई है और कैपिटल ई और स्मॉल आई, ए ई आई ओ यू। आई हैव लेफ्ट वन आई, आई हैव लेफ्ट सी, I have given A, E, O, U. I have left. Then in that case, you will have to check also over here. Or CH equal to small I or capital I. CH equal to capital I. ये पूरा होगा आपका अब कंप्लीट। CH में A, E, I, O, U. तो हमने A चेक किया था, E चेक किया था, O दे दिया था, U दे दिया था, I लेफ्ट कर दिया था। ओके, तो आप डिफाइन करोगे A, E, I, O, U। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा। फाइन। तो अगर इसमें से कोई एक कैरेक्टर है CH में, तो वो वॉवेल होगा, अदरवाइज वो वॉवेल नहीं होगा। क्लियर है? एनी डाउट? एनीवन? तो इट्स वेरी इजी। CH इक्वल टू स्मॉल ए और CH इक्वल टू कैपिटल ए, और CH इक्वल टू स्मॉल ई और CH इक्वल टू कैपिटल ई, और CH इक्वल टू O और CH इक्वल टू कैपिटल O, और CH इक्वल टू स्मॉल u और CH इक्वल टू कैपिटल U, और CH इक्वल टू स्मॉल I और CH इक्वल टू कैपिटल I। ये सब होगा हमारा A, E, I, O, U। तो अगर इसमें से कोई भी वैल्यू हमारी मैच करती है CH वेरिएबल के साथ, तो वो वॉवेल होगा, अदरवाइज वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। एनी प्रॉब्लम? गुड। सो यू ऑल विल गो थ्रू दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम्स आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज अबाउट द, यू हैव टू रीड एनी कैरेक्टर। स्टूडेंट एक चीज ध्यान से समझ लो, कोई चीज इसमें मिस मत किया करो। सपोज टू भी कभी कभी हो जाता है कुछ लोगों से लिखने में मिसिंग, सो इन दैट केस यू विल नॉट माइंड। ओके, अगर कुछ डाउट्स आता है तो तुरंत आप उस पर क्लियर कर लिया करो। जैसे अभी हमने देखा कि मैंने आई इसमें छोड़ दिया था, तो मैंने आई को दोबारा मेंशन कर दिया। तो आपके पास माइंड में होना चाहिए कि अगर हम वॉवेल्स की बात कर रहे हैं तो वॉवेल्स में ए, ई, आई, ओ, यू सारे कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, कभी कभी लिखने में क्या होता है, कोई चीज मिस हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोग्राम्स में एरर आएगा। अब जैसे मान लो उस प्रोग्राम्स को आपको एग्जीक्यूट कराना था, तो कैसे कराते? समझ लो इस चीज को। आप जनरली आप उसको कंपाइल करते हो और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो रन टाइम पे, राइट बटन प्रेस करके माउस का, उसके बाद
ऑब्जेक्ट क्रिएशंस के लिया था, उसके बाद एग्जीक्यूट करा। तो जब एग्जीक्यूट कराना तो जो वैल्यू देना, जैसे मान लो आपको कैरेक्टर एंटर करना है ना, तो कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स में देना। जैसे मान लो अगर आपको देना है ए, तो सिंगल कोट्स में देना इस तरीके से, उसमें नहीं तो एरर हो जाएगा, ठीक है। या अगर कैपिटल ए उसमें एंटर करना है तो आप ऐसे एंटर करना, सिंगल कोट्स में कैपिटल। ये इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा रन टाइम पे, और आपको शो करेगा कैरेक्टर क्या है, वॉवेल है, ठीक है। अगर ये हटा दोगे, सिंगल कोट्स में एंटर नहीं करोगे वैल्यू को वहां पे, तो एरर जनरेट कर देगा। ये रन कराने की बात कर रहे हैं, जब प्रोग्राम्स को रन कराओगे तब इस तरह से वैल्यू दोगे, जहां पे वैल्यू आप स्टोर करते हो, ठीक है। नाउ we'll pay attention on the next program, that is about the write program to read any character and check the given character, or what you have to do, I am telling you. You have to design a program in which you will read any small character. What you have to do? You have to read any small character and you have to convert it equivalent to capital. क्या करना है, इसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब लोअर केस टू अपर केस में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको कोई कैरेक्टर लेना है, कैरेक्टर का मतलब कोई भी अल्फाबेट्स लेने हैं, ठीक है ना। एंड कैरेक्टर का मतलब मैं उसी पे बात कर रहा हूं कि आपको कोई भी अल्फाबेट्स रीड करना है। राइट प्रोग्राम टू रीड एनी कैरेक्टर, टू रीड एनी कैरेक्टर एंड कन्वर्ट इट टू कन्वर्ट it into uppercase equivalent. क्या करना है आपको, कोई भी कैरेक्टर रीड करना है और उस कैरेक्टर को इसके अपर केस में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या हुआ कि अगर हमने स्मॉल ए दिया, ये किस में कन्वर्ट कर दे, कैपिटल ए में। अगर हमने स्मॉल बी दिया, ये किस में कन्वर्ट कर दे, कैपिटल बी में। क्लियर है, यही काम करना है हमको, लोअर टू अपर। क्या करना है, लोअर टू अपर करना है। इसमें इट्स वेरी इजी, जस्ट पे अटेंशन। क्लास L2U, आई हैव गिवन L2U मीन्स लोअर टू अपर। आप क्लास नेम कुछ भी दे सकते हो, यू आर नोइंग क्लास इज योर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ओके, और यू कैन से क्लास इज योर यूजर डिफाइंड टाइप। सो हियर I have given the name of the class L2U means lower to upper, void main, again we have to read character। हमें क्या रीड करना है, कैरेक्टर को रीड करना है। तो कैरेक्टर को रीड करने के लिए हमारे पास डेटा टाइप क्या होना चाहिए, कैर होना चाहिए। और मान लो हमने वेरिएबल का नेम ले लिया है, L ले लिया है। क्या दे दिया है, L, या CH ही ले सकते हो, या कोई भी वेरिएबल नेम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है, अब ध्यान से समझो। हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज योर यू, एंड इसको हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। किससे इनिशियलाइज करते हैं, 0 से। तो जब कैरेक्टर्स को 0 से इनिशियलाइज किया जाता है तो उसको इनिशियलाइजेशन का तरीका इस तरीके से होता है। सी, दिस इज सिंगल कोट्स। जब एक सिंगल कोट्स दोगे उसके बाद एक स्पेस बार दोगे, स्पेस दोगे, फिर सिंगल कोट्स प्लेस करोगे और सेमीकोलन प्लेस कर दोगे। क्या करोगे, कैर यू इक्वल टू सिंगल कोट्स, यहाँ पे स्पेस है, आप स्पेस देना नहीं भूलेंगे, स्पेस सिंगल कोट्स और यहाँ पे सेमी कॉलन। इट मीन्स दिस इज द मीनिंग ऑफ नल कैरेक्टर। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यू में अभी क्या है, 0 है। दिस इज कॉल्ड नल कैरेक्टर असाइनमेंट। इसका मतलब कि यू जो है वो कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल है जिसके अंदर अभी 0 स्टोर है। क्या स्टोर है, 0 कैरेक्टर्स, कोई कैरेक्टर्स इसके अंदर नहीं है। क्लियर है, और उसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, इक्वल टू सिंगल कोट्स, स्पेस दोगे आप स्पेस बार से, फिर सिंगल कोट्स और सेमी कॉलन। ये मैं तरीका बता रहा हूं और इसको आप यूज करोगे एज इट इज। क्लियर है ना। सो व्हाट वी हैव टू डू, कैर यू इक्वल टू सिंगल कोट्स स्पेस सिंगल कोट्स सेमी कॉलन। नाउ स्टूडेंट, इफ जो वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया है दैट इज योर L, if I have given L is greater than or equal to small a and L is less than or equal to small z, means whatever character you are using that is in between small a and small z, क्योंकि लोअर को ही हमको किस में कन्वर्ट करना है, अपर में करना है।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कैरेक्टर आप एंटर करोगे वो लोअर में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? स्मॉल लेटर में होने चाहिए। फाइन, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन कि अगर जो वैल्यू इसमें आ रही है वो किसमें है? स्मॉल ए से लेके और स्मॉल जेड के बीच में है। उस केस में आपको करना क्या है? u इक्वल टू, क्लियर है, L माइनस 32। पे अटेंशन, L माइनस 32। और इससे पहले एक अरेंजमेंट में बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड कैर डेटा टाइप। ओके, आई हैव प्लेस्ड कैर L माइनस 32। स्टूडेंट पे अटेंशन। इससे पहले वाले प्रोग्राम्स में मैंने बताया कि स्मॉल ए का आज की वैल्यू क्या होता है? 97। कहां से शुरू होता है? 97 से। अगर स्मॉल ए की बात करें तो 97 से शुरू होगा, स्मॉल बी की बात करें तो 98 हो जाएगा। क्लियर है ना? लाइकवाइज अगर कैपिटल ए की बात करें तो कैपिटल ए का आज की वैल्यू कहां से शुरू होता है? 65 से। कहां से शुरू होता है? 65 से शुरू होता है। तो अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे, दोनों वैल्यू के 97 और 65 के बीच का डिफरेंस देखोगे तो आपको 32 का डिफरेंस दिखाई देगा। कितने का डिफरेंस आएगा? 32 का। आप माइनस करके देख लो आपको 32 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? आपको कितने का डिफरेंस मिलेगा? 32 का डिफरेंस मिलेगा। तो वही काम हमें करना है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, मान लो जो वेरिएबल लिया हुआ है L, उसमें से हमने माइनस 32 कर दिया। तो जैसे ही माइनस 32 करेंगे हम किस पे आ जाएंगे? 65 पे आ जाएंगे। और 65 कहीं ना कहीं किसी न किसी कैरेक्टर का कैपिटल लेटर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ही 97 में से 65 माइनस करेंगे, सॉरी 32 माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? अब हम स्मॉल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया कि जो भी अगर सपोज करो कि अब हमने L में दे दिया A, स्मॉल ए। क्या दे दिया? स्मॉल ए। तो पहली बात तो ये चेक कर लेगा कि जो L है वो स्मॉल a है कि नहीं। तो ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि L में जो कैरेक्टर हमने दिया वो क्या दे दिया? स्मॉल a। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो जब ट्रू हो जाएगा तो करेगा क्या? a माइनस 32, a माइनस 32। तो a माइनस 32 का मतलब क्या होगा? यहाँ पे a का आज की वैल्यू आएगा। क्या आएगा? आज की वैल्यू। तो a का आज की वैल्यू है क्या? स्मॉल a का 97। क्या है? 97। तो 97 माइनस 32 कर देंगे तो हम किस पे आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स? 65 पे आ जाएंगे। और 65 किसका आज की वैल्यू होता है? तो कैपिटल ए का होता है। किसका होता है? कैपिटल ए का। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो नंबर में आएगी और फिर इसी वैल्यू को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? कैरेक्टर में। किस में कन्वर्ट कर दिया? कैरेक्टर में। तो इसमें क्या स्टोर हो गया? कैपिटल ए। क्या स्टोर हो गया? कैपिटल ए, क्योंकि ये किसका वैल्यू दिखाई देगा? 65 का। और 65 किसका वैल्यू होता है? कैपिटल ए का। तो यहाँ पे हमको मिल गया कैपिटल ए। यहाँ पे प्रिंट कर दो आप, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। आप देख सकते हो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। अगर ऐसा है यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हो, एक काम और कर सकते हैं, L माइनस 32 यहाँ पे हो गया। एल्स एक पार्ट और रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एल्स। अदरवाइज का क्या डिफाइन करना है कि दोनों केसेस में क्या हो। अगर मान लो तुमने स्मॉल ए नहीं दिया, तो अगर स्मॉल ए दिया रहेगा तब तो ये काम करेगा, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो उस केस में क्या करेगा? u इक्वल टू एल, एज इट इज वो कैरेक्टर लेगा और उसको किसमें स्टोर कर देगा? u में। मतलब तुमने कैपिटल ए ही दिया है और कैपिटल ए इसमें नहीं है, तो कैपिटल ए एज इट इज तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, प्रिंट एलएन। दोनों केस में प्रिंट कर देगा कैरेक्टर को। द अपर केस इज प्लस यू, प्लस यू। इसको क्लोज कर दो आप, ठीक है। ध्यान से समझ लो, हमने मान लो एल में दे दिया क्या? स्मॉल ए। तो स्मॉल ए यहां से चेक हो गया और जो वैल्यू होगी यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया, तो इसमें कैपिटल ए आ गया। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सीधे हमारा प्रिंट कर देगा प्लस यू। क्लियर है? अदरवाइज उस केस में अगर मान लो एल में हमने कैपिटल ए दे दिया, क्या दे दिया? कैपिटल ए। चेक करेंगे तो कंडीशन बिकम्स फॉल्स हो जाएगा ना। उस केसेस में क्या हो जाएगा? एल की वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी? यू में स्टोर हो जाएगी। और यू में है क्या? कैपिटल ए। उस केस में भी वो उस कैरेक्टर को एज इट इज रिटर्न कर देगा। तो आपको ये ध्यान देना है, जब इस प्रोग्राम्स को आप रन कराओगे या एग्जीक्यूट कराओगे
तो जब आप एंटर करोगे वैल्यू मीन्स कैरेक्टर, जब एंटर करोगे तो कैरेक्टर को आप हमेशा स्मॉल में दोगे, और यहाँ पे देने के लिए आपको इस तरह से देना पड़ेगा, सिंगल कोट्स के अंदर या इस तरीके से ABC, स्मॉल ही होना चाहिए, क्योंकि जब स्मॉल दोगे तभी इस पे वो कन्वर्ट करके तुमको अपर केस में आपको दिखाएगा। ठीक है, अगर आपने बाई मिस्टेक कैपिटल A दे दिया तो ये कैरेक्टर एज इट इज रिटर्न हो जाएंगे। क्लियर है? इसके लिए यहाँ पे एज इट इज ये रिटर्न हो जाएगा, तो वो एल्स का पार्ट हो जाएगा। जो जैसे कैरेक्टर लेगा, क्योंकि वो इस कंडीशन से मैच नहीं करेगा, और तुरंत वो कैरेक्टर यू में स्टोर हो जाएगा और यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अगर ये मैच नहीं करेगा, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तो यू की वैल्यू जो होगी वो अपर केस में कन्वर्ट होके आ जाएगी। आपको ये चीज नहीं भूलना है कि स्मॉल ए जो शुरू होता है वो 97 से शुरू होता है, और कैपिटल ए जो शुरू होता है वो 65 से शुरू होता है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 32 का होता है। क्लियर हो गया? सो इट वॉज द प्रोग्राम टू कन्वर्ट एन लोअर केस टू इट्स अपर केस equivalent, या write program in GNU Java to read any character and convert it into its uppercase equivalent. एक चीज ध्यान देना है, रन कराते वक्त जब भी आप रन कराओगे प्रोग्राम्स को, तो जो भी वैल्यू एंटर करोगे, जो भी कैरेक्टर आप एंटर करोगे, वो सिंगल कोट्स के अंदर दोगे। किसके अंदर दोगे? सिंगल कोट्स के अंदर दोगे। अगर नहीं समझ में आते तो आप मुझसे फिर से एक बार क्लियर कर सकते हो। इसलिए मैं एग्जीक्यूशन पार्ट भी आपको बता रहा हूँ कि जब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको करना क्या है। क्लियर है ना? कभी कभी ऐसा होता है प्रोग्राम हमारा सब सही होता है, कंपाइलेशन एरर 0 हो गया, सिंटैक्स एरर 0 दिखा रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है तो हम वैल्यू का जो फॉर्मेट है वो सही से नहीं फीड कर पा रहे हैं। तो जब नहीं फीड कर पाएंगे तो वहां पे ये एरर जनरेट करेगा। अगली बात समझ में? इस प्रैक्टिस को थोड़ा, इस प्रोग्राम्स को जरा अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको एक कैरेक्टर के बिहाफ पे भी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा यहाँ पे असाइनमेंट दूंगा। सेम प्रोग्राम करना है और यहाँ पे क्या करना है, अपर केस को किस में कन्वर्ट कर देना है, लोअर केस में कर देना है। सेम प्रोग्राम होगा बट द प्रोग्राम विल बी चेंज। यू हैव टू रीड एनी कैरेक्टर एंड प्रिंट इट्स कैरेक्टर्स इट्स इनटू अपर केस इक्विवेलेंट्स। तो अब आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, सॉरी नॉट अपर केस, यहाँ पे लोअर केस में आपको प्रिंट करना है। क्लियर है? तो अपर केस में तो हमने देख लिया कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये। अब आपको जो अगला प्रोग्राम बनाना है उसको क्या करना है, आपको कोई भी कैरेक्टर देना है, वो कैरेक्टर आप किस में दोगे, आप अपर केस में दोगे, और उसको इसके लोअर केस के इक्विवेलेंट प्रिंट करना है, जस्ट अपोजिट। क्लियर? सो यू विल गो थ्रू दिस प्रोग्राम्स। इफ यू विल हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। फाइन? जो पहले के लिए मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं, अगर आपने कर लिया है, उसमें कोई डाउट्स है तो बताइएगा, मैं उसको डिफाइन कर दूंगा एक बार। ठीक है? और कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपको इल्यूजन फील होता है, कोई भी डाउट लगता है, आप हमको मैसेज या कॉल कर दीजिए, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फाइन? तो आप इस प्रोग्राम्स को स्किप नहीं करोगे। मैंने अभी 2 प्रोग्राम्स बताया आपको, एक वॉवेल और दूसरा किसी भी कैरेक्टर का प्रिंट कीजिए, अगर वो कैरेक्टर लोअर केस में तो वो उसके अपर केस में कन्वर्ट कर दे। नेक्स्ट जो मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूं आपको, वो किस लिए दे रहा हूं कि आपको कोई भी कैरेक्टर रीड करना है अपर केस में और उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। इसमें चेंज करना है लोअर केस में। अगर कहोगे तो मैं बता भी दूंगा उसको भी, लेकिन आप इसको फिलहाल प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, और इसके लिए कहीं से कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये इफ एल्स से ही हो जाएगा। थैंक यू। क्लियर है? Thank you.